Adda is a platform where we aim to bring kabaddi to the screens of every Indian household every day of the year. And Sharks, we're here to ask for 80 lakh rupees for 1% of our company. Would you like to try an ankle hold? कबड्डी Chalo, Yes. chalo, let's go. Aman, let's go. Let's go. कौन था? I don't know. अमन सोच के जाओ। You have a chance, Anupam. मैं जीतने के लिए खेलता हूँ तो कौन जीतने वाली टीम कौन सी है? अभी एक आप जिताओगे अपनी अभी team। 1-1 है। I mean it to win it. देखो वो You're trailing by 1 point. दंगल वाली फीलिंग क्यों आ रही है थोड़ी-थोड़ी? भाइयों देखो ध्यान से मार। मैं पहले बता रहा हूँ मारना मत और नहीं समझो, अगर तुम पकड़ लोगे ना तभी रोक के रख देंगे फिर। ठीक है चलो come on. Oh sorry ये नहीं ये करना। बॉक्सिंग नहीं है। Let's see if this boat can ride the wave, it'll be great. गाइस छोड़ना मत। तू नहीं बोल रहा कबड्डी और करना कहाँ जाना कहाँ है? वो लाइन को टच करके वापस आ रहा है। अच्छा ठीक है ये तो बहुत इजी है। छोड़ना मत। Ankle ले लो. Ankle. Quick, go for it. 2 touches and get out. Get out. मैं जीता? एक पॉइंट अभी टाई है. Well done. You've made it a tie. अच्छा oh now it's equal right? Yes. Anupam for you. We made it a Thank tie you, for brother. Anupam so that there can Thank be a you. tie in the marriage as well with Shadi. बिल्कुल थैंक यू ऑलवेज इक्वल Thank you so much. हमारे Sharks के लिए एक tie 5 मारो. Yeah, on the count of 3. 1, 2, 3. Tie 5. Thanks boys. Thank you. Well played. हाई फाइव आई लाइक दैट सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है ये जो देश है क्रिकेट का इसमें कबड्डी का इंटरेस्ट कहाँ से किसको जागा आप दोनों में से और कैसे जागा? Fine. ये क्रिकेट का देश अभी नहीं है. ये क्रिकेट और कबड्डी का देश बन गया है. I've been involved with the Pro Kabaddi League since 2014 as a presenter, as a commentator with them. और जब पहले गेम शुरू हुआ था 2014 में और जब वो लाइट आए थे मैच पे, we knew we were on to something special. I'm getting goosebumps now because उस दिन, Amitabh ji, Sachin, Amir Khan, everyone came in to watch this sport और हमको actually उस समय पता नहीं था कि क्या होगा. I remember a lot of people said, अगले क्या आएगा? गिल्ली डंडा लीग, खो-खो लीग क्या आएगा? But everyone was proved wrong, including I'll say myself, right? I think I was a professional cricketer going back 6 to 8 years. I don't think I would have been standing here today as a kabaddi co-founder or a kabaddi commentator, right? I'll be honest. आपने बोला आप खुद क्रिकेटर थे? Yes. Unfortunately, when I had an IPL contract in hand back in 2009, I had my first surgery on my knee in 2010 January. Sorry to hear that. Had a subsequent surgery in 2012 and then in 14 as well. So I've had 3 knee surgeries. And I guess I had to give up that dream. But in some sense, I guess cricket was still cricket's still my first love. Yeah. But kabaddi's become life. Nice. And I think in that sense, it's given me a second innings, which I think a lot of Remind people. you his wife he met at kabaddi. I also met my wife through kabaddi. देखो So I कहते हैं ना think, कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ पड़ता है पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अभी नंबर्स की बात करते हैं। Right. एक्चुअल नंबर्स मतलब आपने जो सेल्स किए हुए हैं उनके बारे में बताइए क्योंकि आपका वैल्यूएशन Yeah. काफी हाई है course. एट 80 crores. of course. पहले साल में हमने 24 लाख रेवेन्यू किया था. सेकेंड ईयर में हमने 57 lakhs in revenue किया है. This year to date we've done about 1.2 crores in revenue. We will do about 2.5, and for next year we have signed contracts between sponsorships and media rights of between 10 to 15 crores. बट इसमें धंधा है पैसा बनता है क्या इसमें We are evidence that पैसा बन रहा है, right? कितना पैसा बन रहा है आपका Gross margins about 80%. About 40% of the revenues we earn, we reinvest in the ecosystem. It's a 30-40% gross margin business, right? So we are actually profitable. बट दो बात कही आपने 80% है कि 30-40% है So 80% is our gross margin. नेट मार्जिन 34. 30-40 is net. 30-40 is net नहीं percent. इसको थोड़ा तोड़ते हैं कि आपका ठीक। पैसा बनेगा कैसे आप कह रहे हो मैं 500 मैच करूंगा हाँ. तो पर मैच आपका कितना पैसा बनेगा Okay. As of today, उनको ऑलरेडी लाइन ऑफ साइट है 3 से 5 लाख हर मैच का रेवेन्यू बनेगा. और ये 5 लाख रुपए कौन दे रहा है आपको So it's split, right? The majority of it comes from our media partner. IPL rights बेचते हैं ना, तो Star Sports are buying rights to showcase it on their platform. तो ये 500 मैच टीवी पे चलेंगे OTT में उसके लिए आपको डिज्नी हॉटस्टार या ये लोग पैसे देंगे पैसे दे रहे हैं. Correct. अगर टीवी राइट नहीं होंगे तो आपका पैसा कैसे बनेगा So there are sponsorship is definitely one, but fantasy becomes a massive revenue stream, right? आज अगर आप देखोगे दो कंपनीज ऑलरेडी यूनिकॉर्न बने हैं ऑन फैंटेसी अलोन, एंड ऑन एवरी पर वो तो आपके मैच पे वो चला देंगे नहीं, फैंटेसी लेकिन the data comes from But us. the right? data So comes the data from is us. owned by us. The We are the con- biggest players of data in the world of kabaddi today.
अरे हर्षित, अरे रनिंग को चलना, क्या पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है? यार मैं अभी इंडिया बेस्ट डांसर देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तू भी ना यार, छोड़। हर्षित, ये देख मुझे क्या मिला। शेखर, अरे ये कहाँ से लाए? ये 30 मिनट्स रनिंग करके डेली एक ऐप ने दिया। मुझे भी चाहिए। तो चल जॉगिंग करने। चलो चलते हैं। चल। हाय शार्क्स, मेरा नाम सन्मति है। मेरा नाम हर्षित है। ये मेरा भांजा है। ये मेरे मामा है। सो शार्क्स, जैसे आपने देखा, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। बिना मोटिवेशन के कोई कुछ काम नहीं करता। इसीलिए हम लेकर आए हैं ग्रोफिटर रिवॉर्ड्स ऐप, एक ऐसा ऐप जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखता है और आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स देके मोटिवेट तो करता ही है, साथ साथ हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देते हैं जिसमें मात्र 240 रुपए महीने में आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। और इसके लिए हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी हमारे ऐप पे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और आप हमारा हेल्थ क्विज भी ले सकते हैं। शार्क्स, अब तक हमारे 3.5 लाख से अधिक ऐप डाउनलोड हुए। हम हर महीने 20% ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे 15,000 पेड सब्सक्राइबर भी हैं। अगर हम एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी है शार्क्स, और हमारा टारगेट मार्केट है 75 करोड़ भारतीय 18 से 60 वर्ष के बीच में। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। हम 50 लाख रुपया रेस कर रहे हैं हमारी कंपनी ग्रोफिटर में 1% इक्विटी। लेकिन शार्क, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा। हम आपके साथ एक छोटा हेल्थ क्विज खेलने वाले हैं और जो भी शार्क जीतेगा उसे मिलेगा ये हमारा प्रीमियम बम्पर प्राइस, ग्रोफिटर माउंटेन बाइक। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न ये रहा, कौन से फूड में विटामिन डी नहीं है? ये रहे आपके ऑप्शंस, मशरूम्स, टोफू, कैवियर, केल। अनुपम? अनुपम। सर वो लगता है कि टोफू में नहीं है। आपने दूसरा क्या था? ये फोर्थ केले में। अमन डिस्क्वालिफाइड। कैवियर। कैवियर। केल सही आवाज है। और अमन, बट ही इज डिस्क्वालिफाइड, उसने केला बोला। तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। पहला पॉइंट अमन को जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा वेजिटेबल कैल्शियम रिच है? आपके ऑप्शन है ब्रोकली, कैरेट्स, अनियन, टोमेटो। ओके, पहले अमन ने हाथ ऊपर किया था। कैरेट। ब्रोकली। ठीक है अश्नीर, ब्रोकली इज द राइट आंसर। आपको मिलता है 1 पॉइंट। Which of these is a compound exercise? Come on, Aman. Squats, bicep curl, leg extension, calf raise. आप स्क्वाट। ठीक है, अनुपम ने पहला जवाब दिया। Pulses are good source of बी प्रोटीन। अनुपम आप राइट है। तो अब हम डिक्लेयर करने वाले विनर। अनुपम इज द विनर। कम ऑन अनुपम। अनुपम प्लीज। और ये है हमारा प्राइस। अनुपम, आप प्राउडली ये बाइक जीतते हैं। आज पहली बार किसी ने हमें चेक दिया है। ये सब पार्टिसिपेशंस के लिए। सन्मति, हर्षित, वेलकम टू शार्क टैंक फर्स्ट। थैंक यू। ठीक है, जिससे पहले हम प्रोडक्ट पे जाएं, आपके बिजनेस मॉडल में जाएं, पहले हम समझना चाहते हैं कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया। मैं मेरी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं स्कूल में बहुत पतला था और मेरे को बहुत बुली करते आपको थे। देख के वो याद आ रहा है, मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से, बहुत ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे में एक मोटिवेशन था कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट करना है। एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने भी फुल टाइम MBA किया है नरसिंह मुंजी से फाइनेंस में। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है और 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में।
अमन, हमने पहले ये फिटनेस सेंटर्स में एक रिवॉर्ड और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया था और हमने देखा कि पेन पॉइंट वहाँ भी सेम था, लोग पैसे भरते और रेगुलर नहीं रहते। जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो उनका अटेंडेंस 6 डेज अ मंथ से बढ़ के 12 डेज अ मंथ हो गया। लेकिन मार्च 2020 में पैंडेमिक में सब फिटनेस सेंटर्स बंद हो गए और रातों रात हमारा बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना फिटनेस सेंटर्स के बदले हम लोगों को बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए रिवॉर्ड। सो फिर मैंने मोशन सेंसिंग की स्टडी करके एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग को ट्रैक करके हम उसको रिवॉर्ड दे सकें यूजर्स को। और जब ये प्रोटोटाइप हमने कोरियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम में प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें कोरिया के लिए इनवाइट किया और 4 महीने हमने वहाँ पर रहकर ये पूरा ऐप डेवलप किया। इंडिया में मिड जनवरी 2021 में लॉन्च किया। अरे वाह। हम मांग रहे हैं 35 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। सो शार्क्स हु ऑल विल जॉइन अस एंड बी एवरीवेयर। पुलकित, इंदर, शार्क टैंक में आपका स्वागत है। आप कहाँ के हो, कहाँ बड़े हुए, एक दूसरे को कैसे जानते हो, जरा बताएं। सो दिल्ली में पैदा और बड़े हुए। इंजीनियरिंग दिल्ली में ही करी, फिर MBA करी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से द्वारका, और वहाँ पे MBA गोल्ड मेडलिस्ट था। फर्स्ट वन जिसकी प्लेसमेंट हुई और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स में आया एज अ रिसर्च एनालिस्ट। इंदर मेरे को वहाँ मिले 2012 में। ही वॉज माई 7 लेवल अप बॉस। वी गॉट टुगेदर, जेल टुगेदर बहुत अच्छे से। 1.5 साल में रियलाइज हो गया कि जॉब नहीं करनी है। आई जस्ट केप्ट इन टच विद हिम। उससे फिर बात करते करते मैं कहा जब एक मौका मिलेगा लाइफ में तो डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर। तो इसने प्रॉक्सजी का जब आइडिया बताया, मैंने इसको कहा कि मुझे लेट मी स्लीप ओवर इट, मेरे को 1 दिन दे, मैं तेरे को बताता हूँ इसका कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कौन से साल में हुआ? पिछले साल। जून में। देख सकता हूँ मैं कैप? हाँ जी सर। और ये कैप 360 डिग्री कैसे होगा? नहीं, ये कैप- 360 नहीं है। 360 ये वाला है जो हेलमेट है। 4 डोमेन्स में इसके यूज केसेस हैं जो हमने कवर करे हैं, जिसमें से एक तो ये मल्टी पेमेंट गेटवे ऑडियो बॉक्स है। हमने क्या करा, इसको सारे मर्चेंट्स के लिए, सारे पेमेंट गेटवेज के लिए इनेबल कर दिया। मतलब इससे वीडियो कॉमर्स भी हो जाएगा और साउंड बॉक्स के लिए हमेशा ऑन भी रहेगा। दूसरा वेयर हाउसिंग में यूज़ हो रहा है। हमारे पास एक वन ऑफ द बिगेस्ट फूड स्टार्टअप्स के साथ फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं, रेट नेगोशिएशन हो चुका है। आपका जितना भी वेयर हाउसिंग में आप स्कैन करते हो वो आप टैप को स्कैन कर सकते हो और उसको डाल सकते हो, और इसमें वॉइस भी है तो जो साउंड बॉक्स में भी यूज़ होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि नेक्स्ट आइटम इस ऑर्डर की ये है। एंड साथ साथ ये वीडियो भी रिकॉर्ड करता है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिल्फरेज भी 0 हो जाता है। सिंपल वेयरहाउस में बारकोड स्कैनिंग की बात करते हैं, तो मैं अपने फोरहेड पे एक स्ट्रैप बांध के अगर बारकोड रीडर लगा लूं तो मेरा वेयरहाउस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना, उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। वॉइस इनेबल भी करना पड़ेगा उसको, उसमें GPS भी देना पड़ेगा। और उसमें कैप का जो आपका पैटेंट है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यही काम एक स्ट्रैप पे डाल दूंगा तो आपका पैटेंट वैलिड नहीं रहेगा ना। बट एर्गोनॉमिकली स्ट्रैप पूरे टाइम तक पहना और कैप पहना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। मैं बताता हूँ इसका प्रोडक्ट का यूज केस हो सकता है। तू बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसके ना बहुत सिंपल यूज केस बताता हूँ मैं तेरे को। हाई वैल्यू डिलीवरी है, ठीक है, ज्वेलरी डिलीवरी होती है, फोन्स की डिलीवरी होती है, पिल्फरेज यहाँ पे होती है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने डिलीवरी को बेच दिया ये, और डिलीवरी के जितने एजेंट्स हैं वो पहन के आ रहे हैं, सिर्फ जब वो घंटी बजा रहे हैं ना उस टाइम अगर उसने अपना ऑन कर लिया कि सर मैं डिलीवरी करके आया हूँ बॉक्स, उसका यूज केस है। आपको वो सॉल्व करना था। अब आपने उसमें 10 चीज़ें डालने की कोशिश कर दी कि मैं साउंड भी डाल दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे हो फूड कंपनी में, इवन ग्रोफर्स में जब मैं था, हमारे को बहुत रेलेवेंट यूज केस लगता था कि पिल्फरेज हर लेवल पे होती थी। तो अगर एक बंदा एक बॉडी कैम या हेड पे कैम पहन के है तो आप चाहे उसको चेक भी ना कर रहे हो, ठीक है, पर एक डेटरेंट बन जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा यूज केस है। मैं आपको बताता हूँ, हमको KYC करना होता है, ठीक है। तो जैसे मेरा QR लगा है, जब मेरा बंदा QR लगाने जाता है मैं भी उसको बोलता हूँ तो उसकी पिक्चर ले। बट अगर ये ऑलरेडी वो कैप पहन के जा ही रहा है, उसको कुछ करना ही नहीं है, वो QR लगा के आ गया, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें, और मेरा KYC हो गया। लोन का जो जैसे अगर आपको लेंडिंग करनी है किसी को, RBI की रेगुलेशन है कि आपका वीडियो KYC होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ब्रांच में बैठ के KYC करो या एक कैमरा लगा दो, वहां से वीडियो KYC हो रहा है। तो यूज केस बहुत सारे हैं। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तू 10 चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
सुरेंद्र, आप क्या करते हैं? आप बड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। मैं एग्जीक्यूशन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव, ही इज़ अ इनोवेटर, ही इज़ एन इन्वेंटर। तो इक्विटी स्प्लिट कैसे है दोनों में? 13% इंदर के पास है। 13%। हाँ जी। एंड ही इज द CEO इन अ सेंस। चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर। चीफ प्रोडक्शन। और आपके पास 57%। फंडामेंटली आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी हो। डू यू एग्री और डिसएग्री? वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी, वी अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट एंड हम प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं उसके हिसाब से। अदरवाइज हमें ऑडियो बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आपने कहा। हम सीधा हमारे पास इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बट हमें ये भी समझ आया कि यार एक स्पीकर इसमें डाल दो तो जो आपका सर्विसेबल मार्केट है। भाई स्पीकर भी डाल दियो, भाई you सोलर lost. सोलर पैनल भी डाल दियो। आप मुझे बताइए, आप फोकस कर सकते हैं या? क्योंकि आप इन्वेंटर है ना, तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली इन्वेंट करना चाहते हैं, तो किसी को तो बिजनेस चलाना पड़ेगा ना एक इन्वेंशन को लेके स्केल करने में। That is a headache that I deal with. That is what we do. That is what you do. पुलकित, मैं काफ़ी सोच रहा था इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, आपको समझ नहीं है आप क्या हो। आप जब आए आपने कहा आप क्या क्या हो, इन्वेंटर हो, सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, ऑथर हो। गूगल बाय गॉड एक बुक लिखी थी मैंने 2015। गूगल बाय हाँ गॉड, जी। चलो ठीक है, आप ऑथर भी हो। जो प्रोडक्ट में पैसा लग रहा है, मुझे मार्केट दिख रही है, वो मुझे तेजी से कमोडिटाइज होते हुए दिख रहा है। आप बना भी दोगे, यहाँ भी ऑर्डर मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन आई एडवाइज यू, प्लीज फाइंड फोकस एंड देन बिल्ड अ बिजनेस। गुड लक।